हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दी हुई है टू discs of masses m1 and m2. This is your m1, this is your m2 disc, are connected by a spring. These connected by the spring of force constant k. The lower disk of mass m2 lies on a table. This is your table. ये टेबल है आपका जिसपे लोअर डिस्क है, and upper disk is vertically above it as shown in the figure. अपर डिस्क यहाँ पे है। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वर्टिकल फोर्स F should be applied to the upper disk so that when the force is withdrawn, the lower disk is lifted off the table. It comes off the table. तो इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे सोचे M1 और M2 सिस्टम है, तो M1 और M2 सिस्टम पे डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है? M1 प्लस M2 अगर आपका सिस्टम है, इस पे डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है? मल्टीप्लाइड बाई G ग्रेविटेशनल पुल। तो मीन्स F डाउनवर्ड जो लग रही है वो M1 प्लस M2 इंटू G है। ऑन M1 M2 सिस्टम पे ये फोर्स जब अप्लाई किया गया F फोर्स, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F the spring will compress, so spring force will generate. So till what length the spring will compress depends on how much force you have applied. When the spring force due to compression after application of force F becomes equal to the force F, at that condition, at that point the compression will stop and F spring will be equal to your F external force which you have applied. So F spring generated force will be equal to F. F spring is acting upward, F is acting downward. Now the question says withdraw this F force which is acting downward. So withdraw this force. So when you withdraw this force, spring is still compressed because of the F force which was applied earlier. So that spring force still will be there. So this FSP will be there and FSP equal to F will be acting up. So upward force will be on M1 M2 system will be equal to spring force, and the spring force already we have said here that it is equal to F. So if this upward force be greater than or equal to downward force for this system,
the entire system will lift off from the table, means the M2 will lift off from the table. So your F upward force greater than and equal to is F downward force. In that case, the system of mass M1 and M2 must lift off from the table. क्योंकि upward force up, net force in the upward direction is there, so it has to accelerate in the upward direction. So upward force is your F, downward force is your M1 plus M2 into G. So for this condition, मतलब जब आपका F greater than equal to M1 plus M2 into G से हो जाएगा तो आपका ये M2 definitely will lift up or will leave the contact of the table. इक्वल वाला केस में क्या होगा, जब इक्वल वाला केस में क्या होगा कि अभी इस कंडीशन में टेबल M2 पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है, कांटेक्ट फोर्स. वो फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन का जो कांटेक्ट फोर्स होगा इक्वल वाले केस में विल बिकम 0. मींस M2 has just left the contact of the table, just left, because N is 0. Normal reaction force is 0. So your mass M2 will just leave the contact. So this is your one line solution. Now if you want to solve it conventionally, so let us do that as well for your understanding. I have made the diagram. In the first case, in this case, I am showing that M2 is attached to the spring and this is its natural length. This one is its spring का जो है वो natural length है. इसको लेवल A मान लिया. अब इसके इस पॉइंट से हमने M1 को अटैच किया. M1 को अटैच करने से क्या होगा कि ग्रेविटेशनल पुल for M1 will be there, M1G will be downward. So it will compress the spring to a distance so that the spring force becomes equal to M1G. तो इस केस में यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी कंडीशन है. जब M1 को अटैच किया तो X1 से स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया. तो अब अगर आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. Because of this compression, spring force will act in the upward direction. There is no acceleration, stationary. So upward force will be equal to your downward force. इस कंडीशन में आपको ये मिल गया. अब यहाँ पे हमने फोर्स F अप्लाई करना शुरू किया. फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं. फोर्स F अप्लाई करने से स्प्रिंग में फर्दर कंप्रेशन होगा. X1 तो पहले हो चुका था.
अब हम मान लेते हैं कि x सब्सक्रिप्ट f, जो ये f फोर्स जो अप्लाई किए उसकी वजह से xf इसका फर्दर कंप्रेशन हुआ। अब इस कंडीशन में आपका ये फोर्स अप्लाइड है, तो यहाँ पे जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे M1 का ब्लॉक का, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपका स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? टोटल कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना हो गया है? x1 प्लस xf, x1 प्लस xf, तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। और इस पे ऊपर से F भी लग रहा है, ये फोर्स जो लगी हुई है। अब इस कंडीशन में जब ये F फोर्स अप्लाइड है, हटाया नहीं गया है, विड्रॉ नहीं किया गया है, उस कंडीशन में ये स्टेशनरी है, तो यहाँ भी इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो डाउनवर्ड फोर्स, सम ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स। तो आपका अपवर्ड फोर्स क्या हो गया? k x1 प्लस xf इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया? F प्लस m1 इंटू जी। k x1 प्लस k xf F प्लस m1 इंटू जी। अब यहाँ पे k x1 इज इक्वल टू m1g है, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया? k xf F के बराबर मिल गया, जो अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल मिल गया। अब इस स्टेज में हमने ये F फोर्स को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने से क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, जब इस कंडीशन में ये F फोर्स अप्लाइड था तब हमने ऐसा इक्वेशन लिखा था। अब हमने इस F को हटा दिया, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना काम करेगा? M1 पे आप M1 का फिर से बनाइए, M1G है, अभी भी स्प्रिंग में कंप्रेशन x1 प्लस xf है, ऊपर वाला फोर्स हटा दिए हैं, तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स क्या मिल गया? नेट अपवर्ड फोर्स k x1 प्लस xf माइनस m1g, ये हो गया नेट अपवर्ड फोर्स। बट k x1 और m1g कैंसिल हो जाएगा, तो ये k xf नेट अपवर्ड फोर्स, तो मीन्स f जो है अपवर्ड, k xf इज f है, f अपवर्ड इस कंडीशन में लग रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रही है वो m1 पे, वो f अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस f फोर्स की वजह से m1 आपको एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। बट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, क्योंकि xf है, देखिए जैसे जैसे m1 ऊपर जाएगा xf आपका घट रहा है, xf रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस होता चला जाएगा, तो आपको धीरे धीरे जाके यहाँ पे जब पहुंचेगा ब्लॉक तो F 0 हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, F नहीं 0, F नहीं बोलना, बिकॉज F इज वी हैव टेकन द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच वाज अप्लाइड। तो यहाँ पहुंचने पे F की वजह से जो कंप्रेशन हुआ था और उस वजह से जो ये फोर्स जो जनरेट हुआ था, F स्प्रिंग इज इक्वल टू F, ये F स्प्रिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पहुंचने पे तब तक इसने वेलोसिटी गेन कर लिया था,
यहाँ तक पहुंचने में इसने वेलोसिटी गेन कर लिया था, तो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा, उस वेलोसिटी की वजह से वो ऊपर जाएगा। और कहाँ तक जाएगा वो? XF हाइट तक जाएगा फ्रॉम EE लेवल से। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि स्प्रिंग के केस में ये जो EE है इक्विलिब्रियम कंडीशन है विथ M1 अटैच टू इट। तो इसके बाद जितना मैं डिस्प्लेस नीचे करूंगा तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो जाता है। जितना XF यहाँ पे आया और इसको हटा देंगे तो XF अगर नीचे तक कंप्रेस हुआ था तो ये ऊपर भी जब छोड़ेंगे तो ये XF तक ऊपर जाएगा। तो XF हाइट तक ऊपर गया। तो अब स्प्रिंग में कितने का स्ट्रेच हो गया? ये XF हो गया और ये वाला X1 था पहले। तो हमारा जो नेट स्ट्रेच हुआ इन स्प्रिंग, नेट स्ट्रेच वो कितना हो गया? XF माइनस X1 हो गया। तो ये नेट स्ट्रेच की वजह से क्या होगा? M1 को स्प्रिंग नीचे खींचेगा बट इसको ऊपर की ओर खींचेगा। तो इसको किस फोर्स से खींचेगा? K इंटू XF माइनस X1 से खींचेगा M2 को। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम M2 का भी बना लीजिए। तो M2 इंटू G हो गया। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो लग रही है अब K इंटू XF माइनस X1 हो गया। नॉर्मल रिएक्शन N हो गया। तो हमारा अगर आपका इक्वेशन अब क्या है, हमारे केस में M2 को ऊपर उठाना है, मतलब ऊपर उठाना है मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स शुड बी 0। तो हमारा N ये 0 रख देंगे। तो ये KXF माइनस X1 should be, for this to happen KXF minus X1 should be greater than and equal to M2G होना चाहिए। So KXF minus KX1 M2G, बट KX1 आपको M1G के बराबर दिया हुआ है एंड KXF जो आपने निकाला है F के इक्वल है। तो ये आपका M1 प्लस M2 इंटू G हो गया। तो इस कंडीशन के लिए आपका M2 ब्लॉक टेबल से कांटेक्ट छोड़ देगा। तो ये कन्वेंशनल मेथड हो गया। कन्वेंशनल मेथड आप देखिए कितना लंबा है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट समझ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको एक लाइन में बन जाएगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। M1 और M2 को सिस्टम ले लिया। M1 और M2 पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो नीचे की ओर काम कर रहा है। ये जो F फोर्स लगाए थे तो उससे स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया है। तो जब तक ये F फोर्स लगाए हुए हैं तब तक तो ये सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन जैसे ही आपने हटाया आपको ये स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो गया जो कि F के इक्वल है। स्प्रिंग फोर्स विल स्टार्ट वर्किंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये स्प्रिंग फोर्स उस समय जो जनरेट हुआ है जो F के इक्वल है, अगर वो इसके वेट से M1 और M2 सिस्टम के वेट से M1 प्लस M2 इंटू G के से बड़ा या इक्वल होगा तो ये टेबल का कांटेक्ट छोड़ देगा।